Okay. So as I told you, just an introductory class. So we are just going to figure out, start with very, very elementary mathematics now. Some of you would have already attended some of the other classes, but then this normally this happens to be the first class, and therefore we really go slow. And I also believe that, quite a few would not be good in mathematics. And therefore, I really start from very, very basic level, very elementary level. So the most elementary thing about this is, basic addition, subtraction, multiplication. I'm sure you all know this, right? Addition आता है सभी को? Yes, sir. अच्छा, आता है, चलो. Yes, sir. प्रयाग, आशीष, दो लोगों ने तो यस बोला है, बाकी कोई बोल नहीं रहा है. मतलब I still have doubts. बाकी को सब्ट्रैक्शन आता है. अच्छा, बाकी को सब्ट्रैक्शन आता है. ओके, चलो ठीक है. तो बाकियों को सब्ट्रैक्शन आता है. तो ठीक है, हम कुछ एडिशन करके देखते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, देन विल सी किस चीज को कहाँ पे यूज कर सकते हैं. बेसिकली वो बात है हमारे लिए. सो लेट मी जस्ट से वी वांट टू ऐड, लेट्स से वी वांट टू ऐड दिस नंबर. लेट्स से 5 + 5 + 5 + 5 + 5. व्हाट इज द आंसर? We all know you can say 5, 10, 15 and 20. So this addition is nothing but a kind of, if you simplify this value, is same as multiplication. So you see, multiplication is a simplified version of addition. So if large number of addition is to be done, all we need to do is simply multiply, and that's how it becomes important. So we'll start with few basic multiplication techniques, and then we'll also learn some squaring techniques, and some of those questions, number system questions that are useful to us in the examination. So we are going to focus on those areas. But to, start and be comfortable, let me ask you this question. What is 5 into 5, right? Say, I'm sure most of you know this. 25, never a problem. All of you would know this, smart people. Then let's say, what about 15 into 15? Once again, pretty much 225, because you would have memorized it, because you have been using this value. What if we are talking about 25 into 25? Most of you would still be able to answer this question as 625, never a problem. Now let's say I'm talking about 35 into 35. Now there seems to be an issue. Okay. So 35 into 35, can you tell me the answer? Some of you would be able to tell me it's 1225. What if I were to ask you 45 into 45? 2025. What if it is 55 into 55? 3025. Now, how would you remember? How would you know all these values? I'm just going to give you some inputs. You'll be able to always remember these kinds of values. So what we need to do is, let's say we want to remember 35 into 35, right? So what is the best way of doing this question? We know 5 into 5 is always 25. You write here. This preceding number, essentially what we are doing, we are talking about numbers like 5 square, 15 square, 25 square, 35 square. So if you look at the preceding number, which is 3, now this needs to be multiplied by next higher consecutive number. यानी कि 3 के बाद क्या आता है? 4. So 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12. So my answer is 1225. Let's say I'm talking about 65 into 65. So what do you need? 5 into 5 is always 25. Not a problem. You can simply write here. And then 6 multiplied by 7. So 6 sevens का कितना हो जाएगा? 42, and this will give you your answer. Let's say I'm talking about 75 into 75. I want you to quickly type this answer in your chat box. Very quickly. Okay, good, very good. So I have pretty much, so 7 sevens are 25, 7 8s are 56. What about 95 into 95? Give me an answer to this question quickly. Keep typing, keep typing. Direct answer लिखना है सिर्फ, कुछ multiplication calculation नहीं करनी है. Very good. So 9025. Now I know you will never forget this, right? भूलोगे कभी भी नहीं भूलोगे. तो ये एक जनरल सी बात है. हमें 15 तक याद है, आज के बाद हम ये चीज कभी भी नहीं भूलेंगे. बट
ये तो चलो आप कहीं भी पढ़ सकते थे, ऑनलाइन भी कई बार लोग बता देते हैं इस चीज को. सो व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट इन दिस, इज दिस रूल एप्लीकेबल समवेयर एल्स? क्या हम कुछ और भी फायदा उठा सकते हैं इस नॉलेज का जो हमें अभी फिलहाल मिली है? बिल्कुल उठा सकते हैं. और ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक रूल है ऑफ अ मोर जेनरिक रूल. सो व्हाट इज अ मोर जेनरिक रूल? एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं आपसे पूछता हूं 22 इंटू 28, क्या इसका आंसर बता सकते हैं हम क्विकली? क्या ये रूल यहां पे वैलिड होगा? जैसे कि 8 इंटू 2 16, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट हायर नंबर. 2 के बाद क्या आता है? 3. 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6. दैट इज आंसर. बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका. एंड दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर question. Now, what is the rule? What I'm trying to say is, whenever you have to, we are talking about 2-digit multiplication because this is most commonly required and most commonly used. Say for example, मुझे 44 into 46 चाहिए. तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि यूनिट्स प्लेस का जो सम है वो 10 होना चाहिए और जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो सेम होनी चाहिए. यानी यूनिट्स प्लेस का जो सम है वो 10 होना चाहिए और प्रीसीडिंग डिजिट सेम होनी चाहिए. यानी 4 + 6 10 हो रहा है और प्रीसीडिंग सेम है, तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं. 6 4 जा 24. 4 will be multiplied by next higher number. 4 into 5 is 20. So my answer is 2024. You are able to handle this. Let's say I ask you 83 into 87. I want you to give me this answer in the chat box quickly. फटाफट आंसर दो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ओरली कर रहे हो या फिजिकल कैलकुलेशन कर रहे हो. तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. जल्दी जल्दी. हाँ बिल्कुल सही. मतलब समझ गया. आया समझ में? वेरी गुड. Yes, चल मुस्कान ने सही आंसर दिया है. मुझे ऊपर भी कई सारे बच्चे हैं. आशीष, हिमांशु. Okay, so pretty much everybody has given a more or less correct answer. So what we know is 7 3s are 21 and 8 9s are 72. So my answer is this. Now this we can only handle. Yes, Rishika, absolutely correct. Now we can handle this question only when the sum of units place is 10 preceding it same. Is there any problem? Yes, there may be a problem in one case, which is 71 into 79, for example. I want you to give me an answer to this question. Then I'll tell you what is the issue. Kindly try to answer this question. 71 into 79. Okay. तो प्रयाग, मुस्कान, खुशी, गरिमा, भरत, हिमांशु. हिमांशु ये कैसे किया है तुमने? हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है. 9 और 7 8 जा 56, लेकिन यहाँ बनेगा 09. वेरी गुड. Vivo. Okay, so you see कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चंस किए थे, पहले जो क्वेश्चंस किए थे 5 + 5 10, क्योंकि हम ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, क्योंकि परफेक्ट हम स्क्वायर्स ले रहे थे नंबर एंडिंग विद 5, तो वो हमेशा 5 + 5 आखिरी में आ रहा था, तो 25 बन रहा था, इसलिए स्टैंडर्ड बन गया था. लेकिन इन सब बाकी सब केसेस में 10 कैसे बनेगा? या तो आखिरी में 1 और 9 होगा, या तो आखिरी में 2 और 8 होगा, या आखिरी में 3 और 7 होगा, या आखिरी में 4 6 होगा, या आखिरी में 5 5 होगा, या आखिरी में वापस 6 4 हो जाएगा, या वापस 7 3 हो जाएगा, या वापस 8 2 हो जाएगा, या 9 1. सब केसेस में अगर आप देखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है 16, ये बनता है 21, ये बनता है 24, ये बनता है 25, फिर ये बनेगा 24, ये बनेगा 21, ये बनेगा 16. द ओनली थिंग इज यही बनेगा 9 और ये बनेगा 9. हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको 2 डिजिट में लिखना है. दैट्स ऑल, दैट्स द ओनली थिंग. क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी सोचो, 71 into 79 मान लेते हैं अपन, 1 into 9 9 लिख दें और 7 8 या 56 लिख दें, ये तो बिल्कुल ही रेडिकुलस बात है कि 569 आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि अगर 70 into 70 भी करते तो भी मेरा आंसर 4900 आता, विच इज अ 4 डिजिट आंसर. 71 भी 70 से बड़ा है और 79 भी 70 से बड़ा है. ऑब्वियसली मेरा आंसर ये तो हो ही नहीं सकता. तो गलती कहाँ है? यहाँ पे 0 लगाना है. दैट्स ऑल. तो अगर हमारे पास इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे सम ऑफ यूनिट्स प्लेस इज 10 एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज सेम, यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली
इन नो टाइम, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप ये पूरा का पूरा आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है नाउ। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम में हमें कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिले या कोई ऐसी वैल्यूज ना मिले जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। सो लेट अस से यू हैव सम रैंडम multiplication. Let's say you have something like 23 into 42. Now there is no such condition which is being followed, neither the preceding digit is same nor the units place is 10, and in the shortcut that we have studied we actually need both the conditions to be satisfied. हमें दोनों condition satisfy करानी, but यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रही है और जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम सारे केसेस को कंसिडर करेंगे। नाउ हाउ डू यू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर इन वन लाइन? हमारा टारगेट क्या है कि हम इस नंबर को एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकें और फास्ट मल्टीप्लाई कर सकें। कैसे करेंगे इसका मेथड समझते हैं। ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन आप सबको आता है, जैसे 2 इंटू 3 करोगे 6 बनेगा, फिर 2 इंटू 2 4 करोगे, यहाँ एक काटा मारोगे, 4 3 जा 12 करोगे, यहाँ कैरी 1 करोगे, 4 2 जा 8 1 9 करोगे, और फिर इसको ऐड करोगे तो ये 6 6 9। ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, नॉट अ प्रॉब्लम। चैलेंज क्या है कि हम इसको एक लाइन में करना चाहते हैं। अब इसको एक लाइन में हम कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, मैं भी आपको सिखाता हूं। इसके लिए आपको सबको एक एक्टिविटी करनी है। सब लोग अपनी स्क्रीन अगर ओपन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हालांकि लोड पड़ेगा सिस्टम पे, बट एक बार स्क्रीन ओपन करो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। वीडियो स्क्रीन मतलब वीडियो ओपन करने को कह रहा हूं मैं। Those of you are in sufficient condition, ऐसी कंडीशन में हो कि वीडियो शेयर कर सकते हो तो अलग ठीक है, नहीं तो अगर बाथरूम में बैठे हो तो कोई बात नहीं, रहने देना, ठीक है। क्योंकि ऐसे मतलब क्लास, ऑनलाइन क्लास का मतलब मोटे 2 तकिए लगा के आराम से ऐसे पढ़ के अपन कर सकते हैं ना, इसलिए कोई इशू नहीं बनता है। हाँ बट चलो सब लोग हाँ बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। तो अब मैं आपको जो एक्टिविटी बता रहा हूँ इसको सीखने की है, वो सबको करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैंने इसलिए आपको आपका कैमरा ऑन करवाया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं सब लोग अपना राइट हैंड ऐसे करें, सब लोग अपना राइट हैंड ऐसे करें। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, हाँ बिल्कुल करा राइट हैंड ऐसे। उसके बाद अपना दोनों हैंड ऐसे करेंगे, ऐसे क्रॉस, बोलेंगे अंधेरा कायम रहे। नहीं जस्ट किडिंग, नॉट, कहीं जरूरत नहीं है कहने की, आई एम जस्ट सेइंग, आई मीन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरी। सो दिस इज द सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप इज लेफ्ट हैंड ऐसे करना है अपने को, ठीक है। मैं फिर से करके बता रहा हूं, यू हैव टू डू योर राइट हैंड लाइक दिस, क्रॉस लेफ्ट हैंड। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड। सो सिंपल स्टेप, राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड, और मैंने कुछ नहीं किया, आपको राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड कहा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको इसी चीज की एक्टिविटी करके दिखाता हूं, जो हमने किया अभी पिक्टोरियली किया, राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड, मैं इसको अभी पिक्चर फॉर्म में करके बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? लेट्स से हम इसको करते हैं। तो व्हाट आई हैव डन सो फार, व्हाट आई हैव सेड इज राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड, यही कह रहा, राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये राइट हैंड का मतलब है राइट हैंड में जो दोनों डिजिट्स हैं अपने को मल्टीप्लाई करनी, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीस 2 डिजिट्स। सो 3 into 2 क्या बनेगा? 6। सो यू मल्टीप्लाई दिस। द सेकंड स्टेप इज क्रॉस, दैट मींस यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2 into 2 एंड दिस 3 into 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा हमें उसको ऐड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 बनेगा एंड 3 4 जा 12 बनेगा। तो हमें क्या करना है, 4 और 12 इसको दिमाग में जोड़ना है, ठीक है। तो 12 + 4 क्या बनेगा? 16, कैरी 1। लास्ट स्टेप क्या है? लेफ्ट साइड की दोनों जिसके मल्टीप्लाई करना है। तो 4 into 2 is 8 + 1 is 9 and you see you get your answer in one line. So even if you don't remember any of these multiplication ending with 5 10, ये सब कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी तो गड़बड़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन फिर भी किसी भी वैल्यू को एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 34 into 51 है। क्या करना है हमें? राइट हैंड क्रॉस लेफ्ट हैंड, यही काम करना है। तो राइट हैंड का मतलब है राइट दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई, 1 into 4 4। अगला क्या है? क्रॉस, यानी ये इसमें और ये इसमें, 4 into 5 20, 3 into 1 is 3, so 20 + 3 is 23, कैरी 2, 2 कैरी हो जाएगा। फिर 5 3 जा 15 + 2 17, ये मेरा आंसर आ जाएगा 1734। इस तरीके से हम इसको कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हम एक लाइन में बहुत ही आराम से कर सकते हैं।
ये समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक, यस सर। चलो ठीक है, सो दैट इज वेरी गुड। तो मैं 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ, और फटाफट ऐसे रैंडमली प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब नथिंग, नो थॉट गिवन टू इट। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए आप मेरे को। वेरी गुड, 864। सचिन क्या किया है तुमने, किसका आंसर बताया है? अच्छा, बाद वाले का, ठीक है। पहले वाले का कितना है? वेरी गुड, ये सभी का आ गया 864, वेरी नाइस। इसका आंसर क्या बनेगा सेकंड वाले का? आशीष ने दे दिया, भरत ने भी दे दिया, वेरी गुड। अच्छा, तीसरे का भी तनु ने भी दे दिया, वेरी नाइस। आशीष का भी आंसर आ गया, ऋषिका का आ गया, सचिन का आ गया। सर सबका सीरीज, अच्छा आंचल का भी आ गया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। सो ये वाला बन जाएगा मेरा 198, ठीक है। और ये वाला मेरा बन जाएगा 1368, और ये वाला मेरा बन जाएगा 23 इंटू 82, ये मेरा आंसर बनेगा 1886, 1886। आशीष 1539 क्या है ये? हाँ ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सर गलती से 24 की जगह 27 लिख दिया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। नाउ अब क्या है कि ये काम आता है स्क्वायर्स को याद करने में। मैं अभी आगे बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन 3/3 की होती है, 2/2 की होती है इनफैक्ट, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार 3/3 भी समझाना चाहता हूं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई 3/3 की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ना एग्जाम में, दैट इज 2/2 का मल्टीप्लीकेशन। लेट्स से आई एम आस्किंग यू, टेकिंग अ रिलेटिवली सिंपल एग्जांपल, लेट्स से 123 multiplied by 321. आई एम श्योर यू ऑल नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, बट चांस है कि क्या हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। तो अब इसको एक लाइन में कैसे करें और उसको याद कैसे रखें, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम ऐसे करते हैं, जो मैंने ये हमने राइट क्रॉस लेफ्ट किया था ना, हम इसी का एक एक्सटेंशन लेंगे। तो राइट का मतलब है राइट में डिजिट्स है, राइट हैंड। क्रॉस का मतलब ये दोनों, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब क्रॉस और वर्टिकल। और जो डिजाइन फॉलो किया ना उसको फिर रिवर्स कर देंगे। बाय द वे, इस टाइप के डिजाइन को क्या बोलते हैं, कभी सुना है? समथिंग, दिस डिजाइन इज नोन एज समथिंग। या मोर एग्जांपल, लेट्स से 121, या फिर एक वर्ड होता है, अगर आपने सुना हो, मैडम, MADAM, these kinds Sir, of palindrome. very good, so these kinds of designs are known as palindromes, यानी कि इधर से इसकी रीडिंग देखोगे तो, और इधर से इसकी रीडिंग देखोगे, सो दे आर आइडेंटिकल। सो इफ यू रीड 121 121, MADAM MADAM, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। सो दे आर नोन एज पैलिंड्रोम्स। ऑफ कोर्स हम कैट के अंदर इसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं कैट के अंदर। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, बट एटलीस्ट नाम तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो ये मान लो पैलिंड्रोम, तो ये डिजाइन मेरा पैलिंड्रोम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड। सो 1 into 3 क्या हो जाएगा? 3। अगला स्टेप मेरा है क्रॉस। क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है तो हम राइट हैंड साइड वाला क्रॉस लेंगे, ये इसमें, ये इसमें। कितना हो जाएगा? 3 into 2 6, 2 1 जा 2,
6 + 2 8, ये इसका रिजल्ट 8 आ गया। तीसरा क्या है, क्रॉस एंड वर्टिकल। क्रॉस एंड वर्टिकल एक ही पॉसिबिलिटी है, वर्टिकल ये अगर बीच में ये हो जाए, ये इसमें क्रॉस हो जाए और ये इसमें क्रॉस हो जाए, इसके अलावा तो ये डिजाइन पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर क्रॉस भी करना है, वर्टिकल भी करना है। तो क्रॉस का मतलब 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, तो 9 + 1 10 + 4 14, 14 का 4 कैरी 1, ठीक। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, ये 4 क्रॉस करना है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में क्रॉस करना है, यानी कि ये आपस में होएगा और ये इसमें होएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 6 + 2 8 और कैरी 1 था, कितना हो जाएगा 9। और लास्ट वाला क्या बच गया मेरा, ये 1 × 3 is 3, so my answer is 39483। we can handle this question in one line। कोई भी आप 3/3 का मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से एक लाइन में कर सकते हैं। यही लॉजिक हम 3/2 में भी कर सकते हैं। मान लेते हैं रेदर देन सेइंग 3/3 का मल्टीप्लीकेशन होता 123 × 21 होता, तो क्या करते। तो एक्चुअली इसका एक नया मेथड भी है, बट हम नया मेथड नहीं सीखना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 3/3 का आता है, तो हम इसको 0 मान लेंगे, दैट्स ऑल। वापिस ये मेथड लगा देंगे। सो 3 1 जा 3 करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 + 2 8 करेंगे, फिर ये इसमें आ जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा, ये 4, ये 5 हो जाएगा। फिर इसको आपस में करेंगे 2 हो जाएगा और इसको आपस में करेंगे 0 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो गया। क्योंकि हमने 3/3 का सीख लिया, तो हमें 3/2 का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू हैंडल एनी 2/2 मल्टीप्लीकेशन और 3/3 मल्टीप्लीकेशन और 3/2 मल्टीप्लीकेशन इन वन लाइन, दैट कैन इजीली बी हैंडल्ड। बोलो, यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. Now, there are few things that we are expected to know. For example, हमने यहाँ पे एक ऊपर क्वेश्चन किया था 11 × 18, याद है? अभी देखा था 198, आपने आंसर बताया था। हमने किया था 18 × 11। अब मैं 11 से 2/2 का मैं मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। 11 111 1111 क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन भी मैं समझाऊंगा, बट फिलहाल एक बार मैं समझता हूं 11 × 18। और इसका कौन सा, कैन यू रिपीट? 57 × 24, ये वाला 57 × 24, राइट क्रॉस लेफ्ट। तो राइट करेंगे तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, कैरी 2 आ जाएगा, ठीक। ये राइट हो गया। सेकंड स्टेप है क्रॉस, ये इसमें ये इसमें, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14, 20 + 14 is 34, 34 + 2 is 36, कितना कैरी हो जाएगा 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13, तो 136 ये आ जाएगा, 1368। ओके, ठीक है। Now I'm trying to tell you some shortcut with respect to 18 and 11. Now फिलहाल हम 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स की बात करते हैं। वो कैसे होगा, जैसे हमारे पास 18 × 11 है, हमें क्या करना है, 18 इसके बीच में एक जगह बनाओ, जो भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। 8 + 1 इनका सम कितना होएगा 9, वो इसके बीच में लिख दो, ये आपका आंसर है। मान लो 23 × 11 है, क्या करोगे, 2 3 है, इसका सम कितना होता है 5, वो इसके बीच में लिख दो, आपका आंसर है। समझ में आ रही बात? अब आप ये सोच रहे होगे सर चलो नहीं आता तो क्या मल्टीप्लाई कर लेते? हाँ बिल्कुल कर लेते। इसकी जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये नहीं है कि हमें 23 × 11 आना चाहिए। सिग्निफिकेंट बात ये है कि मान लेते हैं आपको 781 लिखा हुआ दिख जाए। समझ में आ रही बात? अब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि देखो 7 और 1 का जो सम है वो 8 होता है। समझ में आ रहा है? आपको क्या दिखना चाहिए, 7 और 8 का सम 8, इसका मतलब दिस वैल्यू इज नथिंग बट 71 × 11। Now breaking this number is more important than actually knowing the fact that 71 × 11 कैसे करना है। क्यों? क्योंकि 71 × 11 मान लो नहीं भी आता तो आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, राइट क्रॉस लेफ्ट, अभी तो सीखा था। या फिर हम 10 + 1 करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी जो नंबर अगर हमें 10 से 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो अपन 10 + 1 करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये कि जब ऐसा नंबर दिखे तो हमारे दिमाग में ये घंटी बजे कि भाई 71 × 11 है। और अगर नहीं दिख रहा तो हम इसको
फैक्टराइज करना पड़ेगा, और हमें पता है 11 भी प्राइम नंबर है, 71 भी प्राइम नंबर है, तो अच्छा खासा मेहनत लग जाएगी डिवाइड कर करके। 11 तक डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका क्या फैक्टर बनेगा, वो मोर इंपॉर्टेंट है। 583, अब आपको देख के समझ में आना चाहिए क्या है ये 583, क्या नंबर है बताओ? इट इज सिंपली 53 इंटू 11। क्यों? बिकॉज 5 और 3 का जो सम है वो 8 है, ये मेरा आंसर है। अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बता पाएंगे, लेकिन जहां पर हम बता पाए वहां तो टाइम बचा लें। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा नहीं बता, मान लेते हैं मैंने कहा आपको 78 इंटू 11 कीजिए, मान लेते हैं मैंने कहा ये करना है अपने को, आपने क्या किया, ठीक है, इसके बीच में आपने जगह बनाई, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे जगह है, यहाँ 7 है, तो हमें इसका सम करना है। बट 7 प्लस 8 की वैल्यू कितनी होती है? ऐड करना है 15, लेकिन हम यहाँ 15 तो नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? 5, तो 1 क्या हो जाएगा? कैरी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 858। राइट नाउ, अब 858 देख के ये दिमाग लगा पाना कि दिस इज 78 इंटू 11, ये टेढ़ा काम है, आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू डू इट, बट ये तो आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको हमें 352 मिल जाए तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये 32 इंटू या 32 इंटू 11 है, यहां तक तो आना ही चाहिए। ठीक है, कई बार हमें नहीं भी पता लगेगा, लेकिन हमें अगर रेस जीतनी है तो हमें वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना है, हमें दूसरे से फालतू मिलना है, बस दैट्स ऑल। वी हैव टू बी बेटर देन ऑल द पीपल हु आर गिविंग द एग्जाम। वी डोंट हैव टू बी द MSc इन मैथ्स, वी डोंट हैव टू बी number 1, we don't want 100%, all we want is 65% or 50% marks in the examination, so that we score more than the other person. So if you have to score more than the other person, you have to be slightly better than the other person, so this will give you edge vis-a-vis other person. ऐसा नहीं है कि हम सब जगह कर पाएंगे, हमेशा कर पाएंगे, लेकिन कहीं कहीं तो कर पाएंगे, जहां कर पाएंगे वहां पे कर देंगे। आ रही बात सबको समझ में? तो 11 का ये हमारा शॉर्टकट होता है मल्टीप्लीकेशन का। इनफैक्ट मान लेते हैं बड़ा नंबर होता, मान लेते हैं बड़ा नंबर होता, बड़ा नंबर मान लेते हैं, मैंने कहा 324 इंटू 11। ऑफ कोर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/2 में, लेकिन चूंकि 11 है इसका मल्टीप्लीकेशन आसान होता है। इसका मैं शायद आंसर आपको बताता हूं, सीधा आंसर कैसे लिखना है। 324 जब इंटू 11 आ जाए, 11 में कितने इक्के होते हैं, यानी कितने वंस होते हैं? 2 इक्के होते हैं, यानी 2 वंस होते हैं। जितने 1 होते हैं ना, उससे एक कम जीरो लगाना है अपन ने। जितने 1 होते हैं उससे एक कम, उससे एक कम यानी 2 से एक कम, यानी 1 जीरो यहां लगा दिया। जितने जीरो राइट साइड में लगाओगे उतने जीरो लेफ्ट साइड में लगाओगे। ठीक, अब मुझे आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूंकि 11 में 2 डिजिट हैं, आई विल एड लास्ट 2 डिजिट्स, दैट मींस 4 प्लस 0। 4 प्लस 0 की वैल्यू बनेगी 4, इसको छोड़ दूंगा, अगले 2 डिजिट। 2 प्लस 4 बनेगा 6, 6 लिख के इसको छोड़ दूंगा। नेक्स्ट 2 बनेगा 5, 5 लिख के इसको छोड़ दूंगा। नेक्स्ट बनेगा 3, ये मेरा आंसर है। ठीक, मान लेते हैं आप कहते हो चल 3, 5, 6, 4 इंटू 11 मान लेते हैं। एक जीरो यहां लगाया, एक जीरो यहां लगाया। चूंकि 2 होते हैं तो 4 प्लस 0 4, इसको छोड़ दिया। 6 प्लस 4 10, 10 की वैल्यू 0, कैरी 1, इसको छोड़ दिया। 6 प्लस 5 इज 11, कैरी 1 इज 12, इसको छोड़ दिया। 5 प्लस 3 इज 8, कैरी 1 9, इसको छोड़ दिया। 0 प्लस 3 is 3, दिस इज योर आंसर। तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एक लाइन में। आ रही बात सबको समझ में? यस सर। अब मान लेते हैं 11 ना होता, 111 होता। ठीक है, मान लेते हैं 3, 2, 4, 5 इंटू 1, 1, 1। ठीक है, अब इसमें कितने इक्के हैं? 3, देयर आर 3 वंस। उससे एक कम, उससे एक कम यानी 2। तो यहां पे कितने जीरो लगाऊंगा? 2 जीरो। और यहां पे कितने जीरो लगाऊंगा? 2 जीरो। अब मुझे सीधा आंसर लिखना है। अगर मान लो 3 इक्के हैं तो 3 डिजिट्स ऐड करूंगा। आई विल ऐड दिस 3 डिजिट्स। 5 प्लस 0 प्लस 0 5, इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट 3 डिजिट 4 प्लस 5 प्लस 0 9, 9 लिख के इसको छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट 3 डिजिट्स 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 का 1 कैरी 1, इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट 3 डिजिट 3 प्लस 2 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 1 यानी कैरी वाला, 0 लिख के कैरी 1 कर दिया। नेक्स्ट 3 डिजिट 3 प्लस 2 5 और कैरी 1 6, इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट 3 डिजिट्स 3। सो योर आंसर इज
360,195, that will give you the answer of 111. यही मान लेते हैं 1111, तो फिर क्या करते हैं? 3 0। बिल्कुल सही, मान लेते हैं 3 2 4 5 2 इंटू 1 2 3 4, कितने जीरो लगाते हैं? 1 2 3 जीरो यहाँ, 1 2 3 जीरो यहाँ। ऑफ कोर्स बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करोगे तो सही हो जाएगा। 4 इक्के हैं तो आखिरी के 4 डिजिट्स लेते हैं, इनको 4 को, तो बनेगा 2, इसको छोड़ दो, आखिरी के 4, 5 1 2 7, 7 लिख के 2 को छोड़ दो, अगले 4, 4 + 5 9, 9 + 2 इज 11 का 1, कैरी 1, इसको छोड़ दो। अब अगले 4, 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 and 2 13 and कैरी 1, 14 का 4, कैरी 1, इसको छोड़ दो। अगले 4, 3 + 2 5, 5 + 5 10 + 4 14 और कैरी 1 था 15 का 5, कैरी 1। अब अगले 4, so 3 + 2 5, 5 + 4 is 9, 9 + 1 is 10 का 0, कैरी 1। अगले 4, 3 + 2 5, कैरी 1 था 6, इसको छोड़ दो, अगले 4 3। So my answer is 360,54172. This will give you the answer. अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये 11 111 1111 ही क्यों पढ़ा रहे हो? मल्टीप्लीकेशन तो कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी मल्टीप्लीकेशन है। Why are we only studying this? Because it follows a kind of pattern, and patterns can be asked in the examination, and that is why we are following this. What do I mean by saying, patterns can be asked in the examination? Let me just take you one of those questions from CAT. You all know finding out under root, right? मोटा मोटा under root निकालना आता है. Let's say I ask you what is under root of 36. You know the answer as 6. You know the under root of 121, maybe 11. You know under root of 4 as 2. So you know under roots, right? So the examiner says, okay, now you guys know under root. So let me give you this question for finding out under root. So the answer question given to you is 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, and he's asking find out the under root, obviously because you know how to find out under root. अब करो इसको, आपको क्या लगता है हो जाएगा एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन? 11 अब इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है? इसको सॉल्व करने का मतलब महाभारत, और हुआ तो यही एक होएगा और तो कुछ होएगा नहीं ना। व्हाई इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड? एग्जामिनर आल्सो नोज। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है, इसमें लास्ट टू डिजिट का पेयरिंग बना के फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, तो भी इट इज नॉट ए क्वेश्चन दैट कैन बी हैंडल्ड इन द गिवन टाइम फ्रेम दैट इज अवेलेबल टू अस। क्या मतलब है इस बात का? क्यों पूछ रहा है वो? क्योंकि these questions follow a pattern. एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको पैटर्न बताऊंगा, आप मेरे को आंसर बता दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अच्छा 100। अभी मैं इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा, स्क्वायरिंग टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक बार चाहे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके मुझे इसका आंसर बता दो। 1 2 3 2 1। मान लेते हैं इसके बाद है 1 2 3 4, इसका स्क्वायर 1 2 3 4 3 2 1। तो अब मैं चाहता हूं सब लोग आंसर चैट में लिख के दें मुझे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट द आंसर्स टू बी इन द चैट बॉक्स, पर्सनल डायरेक्ट मैसेज। एवरीवन नहीं, ओके ठीक है, वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू गेट द लॉजिक। तो मान लेते हैं इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट खत्म होके 1 2 3 4 आ जाएगा। तो
तो इसका मतलब इसका आंसर कितनी आएगा, 1 कितनी बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा। तो ऋषिका, मुस्कान सबने सही आंसर दिया है। तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लेते हैं आपको ये मेथड पता है, तो अब चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 आ जाए, 5 4 3 2 1 आ जाए, आपको पता है 5 बार लिखना है। अगर ये 9 टाइम्स आ जाता तो आपको पता है 9 टाइम्स 1 लिखना है। सो वंस यू नो दिस लॉजिक देन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैथमेटिकली नहीं सॉल्व होएगा। तो ये 1 11 100 these numbers follow a pattern and therefore we are studying these numbers. There is nothing special about these number के सर ये क्यों करा रहे हो, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो नहीं पूछी जाती है, यही पूछी जाती है बिकॉज इट फॉलोज अ पैटर्न, देयर इज अ लॉजिक टू इट, देयर इज अ पैटर्न टू इट एंड देयरफॉर दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब मल्टीप्लिकेशन 11 की आ गई, आपको 111 की आ गई है ना, इस टाइप से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक एलिमेंट्री चीजें हमें और पता होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने आपको कहा 324 into 5, तो कैसे करोगे इसको मल्टीप्लाई। वन ऑफ द वेज इज की ना 5 4 जा 20 करेंगे, 0 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 5 2 जा 10 and 2 12 करेंगे, कैरी 1 करेंगे, 5 से 15 1 16, राइट। हमने क्या किया, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, उसमें जो था कैरी ऐड किया। बट आई वुड से स्टिल बेटर वे वुड बी टू कन्वर्ट इट 10/2। मतलब 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब 10/2 होता है। तो हमने 10/2 क्यों एक्स्ट्रा काम क्यों किया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान होता है। मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 into 10, आपको कुछ सोचना थोड़ी ना, सीधा आंसर बोलोगे या 40 लगा दोगे। ऐसे ही मैंने कहा 1 2 into 100, आपको कुछ नहीं करना, 2 0 लगाना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 10,000 से मल्टीप्लाई करना हमेशा आसान होता है, इसीलिए हमने बाई 10 लिखा है। तो 324 ये तो हमेशा ही आसान होगा, 3240। नाउ सिंस चाहे ये नंबर ऑड हो इवन हो, आखिरी में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 0 आने का मतलब इवन हो गया, इवन होने का मतलब 2 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करना मतलब सीधा आधा करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं मैंने आपको क्वेश्चन दिया 324, बताओ मल्टीप्लाइड बाय 25, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करने का। ऑफ कोर्स हम 3/2 का मल्टीप्लीकेशन हमने अभी भी सीखा है, बट देन स्टिल व्हाट इज अ स्टिल बेटर वे ऑफ हैंडलिंग दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे इसको। Sir, 100 by 324 into 100 by 4. ठीक, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 100/4 4. क्यों करेंगे हम 100/4, बिकॉज multiplying by 100 is easy, that is first. The second answer is, the second logic is, the divisibility rule of 4 tells us that if the last 2 digit is divisible by 4, the complete number is divisible by 4. That is what divisibility rules tells us, right? So we know 4 is a 32 and that is the answer. So we are able to handle this question very quickly. Should not be a problem. आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा मान लेते हैं एक और क्वेश्चन दो, इसको करो, कैसे करोगे। ओके ठीक है, मुस्कान, अनिश, वेरी गुड। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 10 + 5, वेरी गुड, जिसने भी बताया बहुत अच्छा बताया। 324, 15 का मतलब 10 + 5, 10 का मतलब है 3240, और 5 का मतलब है इसका आधा करना, और इसका मतलब है इसको ऐड करना, दैट्स इट।
ऑफ कोर्स इतना भी एग्जाम में हम लिखेंगे नहीं, मान लेते हैं यही 324 इंटू 15 होता। जीरो लगाने का मतलब क्या है, इंटू 10। आधा करने का मतलब क्या है, इंटू 5। ऐड करेंगे तो 10 + 5 आ जाएगा, तो 4860 ये मेरा आंसर है। दैट्स हाउ यू डू दिस। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं सभी को? ठीक है। अब let us say few more things quickly about these multiplications. Let's say let's say we have this 324 into 1003. What do you think will be the best method of handling this question? 1000 plus 3. 1000 plus 3. So whenever we are having numbers around 10, around 100, around 1000 or around 10,000, so the best way is to split that number. Yes, Anish, we need to split this number. So what you have to do is 324 into 1000 plus 3. Why are we trying to split? Because we know multiplication by 1000 is always easy. So I have 324,000 plus I multiply this 324 into 3. So 3 4s are 12, carry 1, 3 2s are 6, 1 7, and 3 3s are 9. And then you add, so this becomes 9 7 2 4 2 3. And this is the answer, which is much faster than actually multiplying by the regular method. Similarly, if the same question 324 into 997, once again, you don't have to really do it. You just have to be conscious about the fact that it is slightly less than 1000, and therefore this becomes 324 into 1000 minus 3. So it becomes 324,000 minus 3. Once again, we have to take 972 and you have to subtract. So this becomes 8, this becomes 2, this becomes 0, this becomes 3, this becomes 2, this becomes 3, and you get your answer. So if you're just aware about these things, the question will be much faster. That's all. It's not that if you have 324 into 997, you cannot multiply. ठीक है, आप अपना time लेके आराम से कर सकते हो. But then this is certainly much better and a faster way of handling these questions. Right. So that's how you have to look in terms of, calculations. You have to look in terms of multiplications. Now I will take you through the next idea of memorizing and learning squares. Why do we need to learn these squares? Because if you look at some of these questions on number systems, let's say I ask you this question, 3 4 7 8 whole की power 4 5 6 3. What is the units place? Let's say this is the question, right? What is the units place? Obviously you cannot multiply 3478 4563 times. एक तरीका तो यही है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 4 7 8 into 3 4 7 8 into so on till इतनी बार मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर निकालें. Obviously we cannot do such a question in examination. Similarly, you may be asked this question, if this number is divided by 100, what is the remainder? Say for example, if this number is divided by 100, what is the remainder? In other words, what he's asking, what is the last 2 digit of this result? मतलब अगर हम 3478 को इतनी बार मल्टीप्लाई करें तो इसका आखिरी का 2 डिजिट क्या होगा? Now these are the questions that we are going to study subsequently in our classes. However, for us to be able to do it more effectively, we need to have good command over squaring techniques. That means learning squares. हमें squares आने चाहिए. So some of the squares you will be aware. जैसे कि कितने स्क्वायर से याद हैं? सब लोग बोलो माइक ऑन करके. 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1. 2 का? 4. 3 का? 9. 4 का? 16. 5 का? 25. 6 का? 36. 7 का? 49. 8 का? 64. 9 का? 81. 10 का? 100. 11 का? 121. 12 का? 144. 13 का? 169. 14 का? 196. 15 का? 225. 25. 16 का? 256. 17 का? 289. 18 का? 324. 19 का? 361. 20 का? 400. 21 का? 441. 22 का? 484. 23 का?
सब खोल के बैठे हैं क्या कॉपी किताब या कैलकुलेटर? अच्छा मान लेते हैं मानना क्या है, सही बात तो है, आता नहीं मान लो अपने को, मान लेते हैं अपने को 24 का स्क्वायर नहीं आता है एक बार के लिए, और 25 का तो चलो आता ही होगा, ठीक है। मान लेते हैं नहीं आता, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, जब आता ही नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये करोगे कैसे, इसको करेंगे राइट क्रॉस लेफ्ट। जो आपने मेथड बताया। हाँ इसलिए 4 4 जा 16 कैरी 1, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल 1, 4 4 जा 5 76। ऐसे 26 का स्क्वायर बनेगा, 676, 27 का बनेगा, 729, 29 का बनेगा, 841, 30 का बनेगा, 900, इस टाइप से स्क्वायर्स करने। लेकिन माय एक्सपेक्टेशन इज कि आप स्क्वायर्स 25 तक का याद कर लो, अगर नहीं याद है तो फिर ये वाला काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने 25 तक का स्क्वायर याद कर लिया, तो करीब हम 900, 925 या 925 तक का स्क्वायर हम अभी याद करेंगे मुझवानी, अभी क्लास के अंदर नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन माय एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन इज दैट आपने स्क्वायर्स याद किए कहां तक, 25 तक, और नहीं किए तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो दैट राइट क्रॉस लेफ्ट वाला मेथड हम यूज करके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है, ओके। सो तो सबको समझ में आ रहा है ना यहां तक? यस सर। ठीक है। तो अब आई एम स्टार्टिंग दिस विद वैल्यूज विच आर अराउंड 100, हम उनकी बात कर रहे हैं जो 100 के आसपास हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अच्छा एक चीज और, 100 का स्क्वायर याद है सबको? यस सर। कितना होता है? 1000। ओह 10,000, सॉरी सर। 6 का स्क्वायर याद है? 36 सर। तो 106 का स्क्वायर बता सकते हो? आंसर लिख के बताओ, चैट में, बोलना नहीं है किसी ने। ठीक है अनीश, ओके, देखते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज करना है मेरे को, नहीं तो सबको पता लग जाएगा। हाँ जी, बाकी लोग, उत्कर्ष, सुहानी, आंचल, मेघा, ऋषिता, ओके, ठीक है, ठीक है, खुशी, वेरी गुड, ओके। तो डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर सकते ना, कि भाई 100 का पता है, 6 का पता है, तो 106 का ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 10036 इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज यू सी व्हाट इज 106? 106 is nothing but 100 plus 6 का whole square. Now we know, of course, I'm sure you all have studied this formula, a plus b का whole square as a square plus 2ab plus b square, या a square plus b square plus 2ab, right? So this becomes 10,000 plus 36 plus 1200. So my answer is 11236. That's how you handle this question, right? So that is the answer. Most of you have given it correct. But my expectation is you see the question and give me the answer in that sense. For example, what I'm saying, कि मान लेते हैं मैंने आपको कहा कि भाई 108 का आंसर बताइए, you should be able to tell me it is 11664, right? So let's say I ask you 112 का answer, so you tell me the answer as 12544. Now whatever the way I am doing it, I also want you to learn this method. This will help us in handling subsequently, questions on these last two digits, units place, number divisible by 10, and so on and so forth. And that is why I'm trying to teach you. सर ये मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट करना, ये 106 का स्क्वायर कैसे किया? 106 का स्क्वायर कैसे किया, ये वाला मैंने सर ये इसमें क्या किया मैंने, 106 कैन बी रिटन एज 100 plus 6, ठीक है। मतलब मान लेते हैं मैंने 102 लिखना है, तो आई कैन राइट दिस एज 100 plus 2, राइट? नाउ सो दिस कैन बी रिटन एज 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 6. ये कैसे लिखा मैंने? दिस इज नथिंग बट
दिस इज द फॉर्मेट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखा मैंने। ओके सर, फिर हो इस- जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, तो हमने हाँ इस जी। चीज को अभी मैंने ऐसे लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि ये भी ना करें, अपन डायरेक्ट आंसर निकाल लें, वो भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं समझाता हूं अभी, ठीक है? 2-3 चीजें समझनी है अभी। फिलहाल मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूं 106 का। दूसरा तरीका ऑब्वियसली 106 इंटू 106 करना पड़ेगा अपने को। फिलहाल लेट अस लुक एट हाउ डू वी हैंडल दिस क्वेश्चन 106 का। नाउ फिलहाल हम किन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज विच आर क्लोज टू 100। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो 100 के आसपास की वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि 100 का स्क्वायर हमेशा आसान होता है, तो इसलिए मैं 100 के आसपास की वैल्यूज की बात करता हूं, ठीक है? नाउ माई आंसर विल ऑलवेज हैव 2 पार्ट्स, ये ध्यान रखना। माई आंसर विल ऑलवेज हैव 2 पार्ट्स, एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, हमें ये ध्यान रखना है। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो मेरे नंबर के स्क्वायर के 2 पार्ट होने हैं, एक राइट साइड में आएगा, एक लेफ्ट साइड में आएगा। राइट साइड विल हैव नेसेसरली हैव 2 डिजिट्स, ना तो अपन 2 डिजिट से ज्यादा रख सकते हैं और ना ही हम 2 डिजिट से कम रख सकते हैं। तो हमारे पास फिक्स्ड है, 2 डिजिट्स हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है? अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके अलावा एक फर्स्ट चीज क्या है, मेरे आंसर के 2 पार्ट हैं, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट विल ऑलवेज हैव 2 डिजिट्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसके अलावा एक चीज कहानी आपको याद रखनी है, हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो लोग अमीर हैं वो और डैश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अरे एक बार आपने कराया था ये। हाँ, तो जिसका हुआ है वो चुपचाप बैठे रहेंगे थोड़ी देर। अभी बोल रहे थे। हाँ, बाकी लोग बोलेंगे या बाकी लोग को पढ़ने देंगे, ठीक है? रिवीजन है, जिन्होंने अटेंड कर रखी है उनके लिए रिवीजन है, और जिनका मोस्टली का तो फर्स्ट है, तो मैं फर्स्ट क्लास के हिसाब से इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो हम बात करेंगे 100 से 100 के आसपास की। कहानी ये है या क्वेश्चन ये है, जो लोग अमीर हैं वो और डैश हो रहे हैं। क्या करोगे इसका आंसर? वो और अमीर हो रहे हैं। वेरी गुड, वो और अमीर हो रहे हैं। सो पीपल हु आर रिच आर गेटिंग रिचर। बिल्कुल गरिमा, बिल्कुल, इसका बिल्कुल सही आंसर। जो लोग अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है वो क्या हो रहा है? वो और गरीब हो रहे हैं। जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो सही बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाइसी सा है। आप बताओ, आप अमीर हो या गरीब हो? अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया। अब हमें ये क्या अब क्वेश्चन ये है कि भाई आप अमीर हो या गरीब हो, तो हम कैसे कहें कि हम अमीर हैं या गरीब हैं? कुछ अच्छा, तनु श्योर है अब क्या है कि अमीरी और गरीबी कंपेयर करनी पड़ती है। भाई जो मर्सिडीज चला रहा है उसके सामने तो अपन गरीब हैं, फॉर्च्यूनर वाले के सामने गरीब है। जो साइकिल चला रहा है शायद उससे हम अमीर हैं। सो इट इज ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो हमें डिफाइन ये करना है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा को हम अमीर बोल देंगे और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा कम को हम गरीब बोल देंगे। सो इस केस में हमारे पास वो वैल्यू है, वो 100 है। हमारी वैल्यू क्या है? 100। इसका मतलब ये है कि अगर 100 से ज्यादा कुछ नंबर है तो हम उसको बोलते हैं अमीर, और 100 से कम है तो हम उसको बोलेंगे गरीब। याद रहना चाहिए, मोटी मोटी बात है कि 100 से कोई चीज ज्यादा तो हमने उसको क्या बोला? अमीर बोला, और 100 से कम है तो हमने क्या बोला? गरीब। तो ये 2 चीजें हैं हमारे पास, 100 से ज्यादा अमीर और 100 से कम गरीब। अब हम यहां पे देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 106 जो है ये अमीर आदमी है, गरीब आदमी है? अमीर है जी, वेरी गुड। कितना अमीर है? कितना अमीर है? 36। 6 अमीर है। वो कितना अमीर है? 6, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा क्या है? 100। 100 से ज्यादा यानी अमीर। कितना अमीर? 6 अमीर। तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, जो बनेगा यहाँ 36। ठीक है, हमें पता है अमीर आदमी और अमीर होता है, यानी 6 में हमें 6 ऐड करना है, यानी जितनी अमीरी है वो और अमीरी बढ़ गई। तो 106 + 6 कितना हो गया? 112। यही आपका आंसर है। ठीक, लेट्स से अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं हमें 108 करना है। ये आदमी अमीर है, गरीब है? ये अमीर है। कितना अमीर है? 8। 8 अमीर है। तो हमें क्या करना है? 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर बनेगा 64। चूंकि ये अमीर है, अमीर आदमी और अमीर होता है,
तो ऐड करोगे तो 108 plus 8 is 116. So my answer is 116/64. Yes, Utkarsh, you are absolutely right. हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो मैं चाहता हूं एक बार आप मेरे को फटाफट चैट में आंसर लिख के बताओगे 104 का, ठीक है, फिर 106 का, 107 का, 108 कर चुके हैं, 109 का। इसका मुझे आंसर सब लोग चैट में फटाफट फटाफट, कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ टाइप करना है। 108 ठीक है। अनीश, श्रिया बिल्कुल सही है, प्रयाग सही है, उसके पहले अनीश का बिल्कुल सही था, ठीक है। आशीष, पीयूष गुड, अच्छा पीयूष ने तीनों डाल दिया, श्रिया ने भी, श्रिया कौन सा अच्छा, वो 36 बताया, 108, 16, वेरी गुड, प्रीटी मच, यस। उत्कर्ष बिल्कुल ठीक है, अनीश एब्सोल्युटली, ऋषिका सही है तुम्हारा भी आंसर, 10816, तुमने 149, ऋषिका तुमने बताया 107 का, ये 109 का, हाँ जी बन रही है बात, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ये सेम लॉजिक है, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 108, बिल्कुल सही मुस्कान, करेक्ट। ये बनेगा 112/36, ये बनेगा 114/49, ये बनेगा 118/81, ठीक है। निश बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं आप मेरे को 102 का स्क्वायर बताएंगे। ये गलती नहीं करनी, 102 सब लोग बताओ, सिर्फ 102 का। 10404 है सर। यस, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक सौ एक का बताओ, 101। Sir, 10201. 10201. 10201, Sir, 201. ठीक है, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है, 01 का, बिल्कुल सही, ये हम गलती नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक। तो इसका मतलब ये है कि आप सबको अभी स्क्वायर 100 से लेके 109 तक तो आप बता ही पाओगे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, 112 तो मैंने लिख दिया था, 113 का स्क्वायर बताइए, फिर देखते हैं इसका आंसर। One, two, 7, 6, 9. 12609. तनु ध्यान से देखो, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। गरिमा, मुस्कान बिल्कुल सही। ओके, सो इन दिस केस, यस प्रयाग, पीयूष बिल्कुल सही। कितना अमीर है, 13, 13 का स्क्वायर होगा 169। आई कैनॉट राइट 169 हियर, दिस विल बी रॉन्ग। व्हाई विल इट बी रॉन्ग? बिकॉज आई ओनली हैव 2 स्पेसेस। आई टोल्ड यू हम इसमें 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, ना तो ज्यादा लिख सकते हैं ना कम। तो जो 1 एक्स्ट्रा 1 आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कैरी में चला जाएगा बेसिकली। अमीर आदमी अमीर होता है, 113 + 13 कितना बनेगा, 126। Carry 1 will make it 127. So my answer is 12769. That's how you will be able to handle this question. Hanji, making sense to all of you? Yes, sir. Okay. चलिए, so let me just give you few more things. तो मैं चाहता हूं आप एक बार 111 से लेके 119 तक का स्क्वायर लिख लें, प्रोवाइडेड यू वुड बी नोइंग स्क्वायर स्टिल 19। मान लो 19 का स्क्वायर आपको कितना होता है, 361 नहीं पता, तो 19 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको एक बार करना पड़ेगा। सो आई वांट यू टू डू दिस, देन आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल।
2-3 प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपको आगे की बात कहानी सुनाऊंगा इसमें क्या है। ठीक है, हाँ जी आंचल, आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। कुछ बन रही है बात? ठीक है अनीश, ऋषिका, तनु, मेघा, ठीक है, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। सुहानी, आर यू देयर? उत्कर्ष, ठीक है, गरिमा, वेरी गुड। ओके, ठीक है। सो आई आई अंडरस्टैंड दैट यू ऑल नो प्रिटी मच हम कर पा रहे हैं। ये 56 वानी किसका आंसर बताया तुमने? ये So 116 square. 116, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। ओके, अब कैरी वाला तो हमें समझ में आ गया, बट हमारे देश में गरीबी भी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई वुड वांट यू टू टेल मी यूजिंग सेम लॉजिक, figure out the answer to 96 ka square. Of course we can do this in many other methods, but I want you to just tell me this method, because why I'm trying to teach you this method, because subsequently we will be required to find out fourth power of numbers. वो हमें काफी काम में आने वाला है। मान ले जैसे हमें चाहिए, हमको काफी सारी रिक्वायरमेंट होने वाली है कि 78 की पावर 4 निकालो, 57 की पावर 4 निकालो। बेसिकली सारी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, इसलिए हमें, मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, बस और कोई बात नहीं है। ओके अनीश, गुड। ओके, सो व्हाट डू वी डू? इस केस में स्टैंडर्ड हमारे 100 है। अमीर है गरीब है? ठीक है, कितना? 4। 4, तो स्क्वायर 4 4 का करना है, बिल्कुल सही, स्क्वायर 4 का करना है, ना कि 6 का। यूनिट प्लेस का स्क्वायर नहीं करना। 16, गरीब आदमी गरीब होगा तो और कम कर दो, 92। ये आपका आंसर है, एंड ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट, बिल्कुल सही, 9। ठीक है, मुझे बताइए 99 का स्क्वायर, इसमें गलती मत करना। आई वांट यू टू टाइप दिस आंसर।
सीधा आंसर टाइप करो, आना चाहिए सभी को। ओके पीयूष गुड, तनु नाइस, भरत वेरी गुड, स्वानी ठीक है बढ़िया, खुशी गुड, गरिमा नाइस, ठीक है, आशीष गुड, आंचल नाइस वेरी गुड, सुमन ठीक है बढ़िया, मुस्कान नाइस गुड, मेघा ठीक है गुड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गरीब है कितना, एक, स्क्वायर करेंगे एक का, 1 कैन बी रिटन है 0 1, यू डोंट हैव टू राइट 1 बिकॉज 1 0 लिखना गलत है, 0 1, 2 डिजिट में 1 लिखना है तो 0 1 लिखेंगे। गरीब आदमी गरीब होगा 98। ठीक है, अब मैं इसी के ऊपर एक एप्लीकेशन क्वेश्चन ले लेता हूं, कैट लेवल टाइप का। यू हैव टू टेल मी द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब लेट्स से xx इज अ 2 डिजिट नंबर विच इज रिपीटिंग, जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो YYZZ आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z? In fact, the question is what is the sum of the digits of x, y, z? ये निकालना है आपने। You understand? So 2 digit number, when it is squared, I get a 4 digit number such that the first 2 digits is repeated, the last 2 digits are repeated, and you are trying to square. जिसको भी पता है वो अभी चुप रहेंगे, जिसको नहीं पता है उसको ट्राई करेंगे और मुझे चैट में पर्सनल वाला डायरेक्ट मैसेज डालेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं आंसर सही है या गलत है। ठीक है, ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ 2 डिजिट नंबर whose square, you know, we do it and you get a answer, and so Garima has already given the answer, very good। और इसका रिजल्ट क्या आएगा गरिमा, वो भी डाल दो। अनीश पहले वैल्यू बताओ। अनीश हैज आल्सो गिवन मी द आंसर, गुड। नहीं, अंशीष, अच्छा मैं अनीश बोल रहा हूं, अंशीष, अंशीष है ना? ओके ठीक, ओके। ऋषिका तुमने अभी मेरे को पिछले वाला आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये वाले का आंसर चाहिए। xx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू YYZZ, इसका आंसर बताओ। अच्छा ठीक है, गरिमा ने वैल्यू बता दी मुझे। कुछ ट्राई करो, जुगाड़ बिठाओ, ट्रायल एंड एरर करो, कुछ तो करो। It's a good quality question for whatever we have learned so far. This will be useful here, right? So that's why we are utilizing it. Okay, Arul, very good. Okay, Suhani, very good. Khushi, nice to see your answer. Good. Suman, very good. Okay, so there are 2 or 3 ways of approaching this question. If you are not able to do, आप लॉजिकली सोचो, इसके 9 ही आंसर हो सकते हैं। मान लो नहीं आता तो ट्राई मार लो, क्या हो गया, 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर,
100 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 5 डिजिट हो जाएगा, है ना, और हमें 4 डिजिट का, यस तनु बिल्कुल ठीक है। अगर हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो हम मान लो 99 का स्क्वायर करते हैं, तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना करीब है 1, तो आखिरी में क्या आएगा 01, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है 88, कितना करीब है 12, क्या 12 का स्क्वायर 144 होता है, शायद ये आंसर हो, पता नहीं, बट इसको करके देखना पड़ेगा। 12 गरीब आदमी गरीब होगा, 76 कैरी 1 77 आ गया, यानी कि 88 का स्क्वायर इज 77 44। तो x की वैल्यू हमें पता है 8, y की वैल्यू हमें पता है 7 और z की वैल्यू पता है हमें 4। सम निकालना है तो 19, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, दिस कैन बी हैंडल्ड। बताइए यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये समझ में आती है तो मैं अब आपको नए लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। नेक्स्ट लेवल पे मान लेते हैं मेरे पास स्क्वायर आ गया 207, इसका स्क्वायर करना। विच वन? जो अभी आपने करवाया ये x डबल एक्स स्क्वायर वाला, आप इसे रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैंने ऑप्शंस ले लिए ना। देखो 4 डिजिट का नंबर है, या तो 99 का स्क्वायर करके देख रहा हूं, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। अब मुझे पता है 99 के स्क्वायर में आखिरी 2 डिजिट क्या आएगा 01, यस सर। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि सेम चाहिए अपने को। जी। फिर अगला ट्राई कर लो 88। मान लो अपन 88 नहीं ट्राई करते, मान लेते हैं जल्दी मिल गया, मान लो 77 होता, तो अपन कितना कितना करीब है ये सर 23। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो आखिरी में कितना आ जाएगा 29, तो ये भी नहीं आंसर होगा। ओके सर, आ गया सर, आ गया। ऐसे अभी मैं आपको 50 वाला भी बताऊंगा कि भाई ये 33 का कैसे करना है, 44 ये सब अभी बताता हूं मैं, पहले एक बार 207 का समझा लेने दो मुझे। ओके सर। ठीक है, वंस अगेन एवरीथिंग इज सेम। मेरी स्टैंडर्ड वैल्यू वैसे 100 है, लेकिन मैं यहां पे 100 स्टैंडर्ड लूंगा तो अमीर कितना हो गया 107, विच आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सो मैं स्टैंडर्ड को चेंज करूंगा, आई विल टेक स्टैंडर्ड एज 200। सो 2 इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको मैं क्या बोलता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलता हूं। समझ में आ रहे? बस अब सब कुछ सेम है। मेरे आंसर के 2 पार्ट, राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट विल हैव 2 डिजिट्स, ना ज्यादा ना कम। स्टैंडर्ड मेरा लेकिन क्या हो गया 2 into 100, मेरा स्टैंडर्ड है 200, बस, और कोई फर्क नहीं है। अभी अमीर है गरीब है, कितना अमीर है 7, 7 का स्क्वायर 49, ये तो पता ही है। अब हमें पता है अमीर आदमी और अमीर होगा 214, सब कुछ ठीक है, बट आंसर लिखने से पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 428 एंड दिस इज माय आंसर, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। मान लेते हैं आपने कहा सर 307 होता, तो क्या करते, मेरा स्टैंडर्ड होता 3 into 100, तो अब 7 अमीर है, 7 का स्क्वायर 49, अमीर आदमी अमीर होगा 340, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 12 4 9, तो कितना आ जाएगा 942, ये मेरा आंसर है। ऐसे ही 407 होता तो क्या करते अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट्स ऑल। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक, नाउ अच्छा, अब मुझे सब लोग इसका आंसर बताओ 412 का स्क्वायर। क्या बात है, सब लोगों ने कर दिया। कैलकुलेटर तो नहीं यूज किया है? सर कॉपी पे किया हुआ है। अच्छा
ठीक है सुहानी, गॉट इट राइट। प्रयाग, वेरी गुड। गरिमा, आपने आप किया सबने, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा। सुमन, आशीष, प्रयाग, तनु, पीयूष, ठीक है। श्री सुहानी, भरत, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी उत्कर्ष, कुछ बन रही है बात? तुम्हारा है उत्कर्ष? तुम्हारा नाम भी उत्कर्ष है ना? अच्छा वैसे पूछ रहा हूँ, बन तो रही है ना मेरे को? हाँ अगर बताऊंगा अभी, कोई बात नहीं। चलो मैं एक बार समझाता हूँ। हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है? 4×100, ठीक। तो अमीर कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 44 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। अमीर आदमी अमीर होगा, यहां तक तो सही है, बनेगा 424। अब क्वेश्चन ये है कि पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करके +1 करें या 424 में 1 ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीप्लाई देन कैरी, बिल्कुल सही। ये वाला गलत है, क्योंकि जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, आप ध्यान से देखो, ये भी तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट कैरी भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें कैरी तो सिर्फ 1 ही लेना है। तो हम पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी 424 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 फर्स्ट, एंड देन कैरी इज एडेड। सो 169744, दैट इज द आंसर। ये आंसर बनेगा। ठीक है मुस्कान, बिल्कुल सही। हाँ अगर समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कैरी बाद में करना है बस, और कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा 387 का स्क्वायर। मैं चाहता हूं एक बार ये करके दिखाओ मुझे सब लोग। ठीक है अंशीष, बिल्कुल सही। पीयूष कुछ तो गड़बड़ है थोड़ी सी। हमारा स्टैंडर्ड कितना है यहाँ पे? 4×100। अगर हम 300 स्टैंडर्ड लेंगे तो मुझे 87 का स्क्वायर याद होना चाहिए, वो तो हमें याद ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड। गरीब है अमीर है? गरीब। 13 गरीब है, 13 का स्क्वायर इज 169। अब गरीब आदमी गरीब होगा, ठीक। अब क्या करूं? इंटू 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 7 4 जा 28 एंड 129, कैरी 2, 4 3 12 एंड 14, और कैरी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 149769, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सुमन, बिल्कुल सही आंसर है। तनु सही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको मूव करेंगे। सर एक बार रिपीट करना। देखो 387 अपने को चाहिए, ठीक है। ओके हम 400 ले लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू मेरी 4×100 है। 400 से गरीब है, कितना गरीब है? 13।
तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 बनेगा। ओके सर। 169 का 69 लिख के 1 कैरी कर देंगे हम। ठीक है, ये सर। गरीब आदमी और गरीब होता है 374। 374। आंसर लिखने से पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, लेकिन Okay. कैरी लास्ट में ऐड भी करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा और लिखने से पहले कैरी तो ऐड करना ही करना है बस। गॉट इट सर। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू। अच्छा, मान लेते हैं इस तरीके से अभी हमने क्या किया, 100 से अमीर करके 125 पहुंच गए, 200 से अमीर करके 225 पहुंच गए, 300 से अमीर करके 325 पहुंच गए, ऐसे करते 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 900 से अमीर 925, 100 से गरीब करके कहां पहुंचेंगे 75, 200 से गरीब करके कहां पहुंचेंगे 175, ये कहां तक पहुंचेंगे 275, ये कहां तक पहुंचेंगे। इतना तो हमने कर लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं एक ये बच गया, 50 से 75 बच गया और 25 बच गया, और 1 से 25 तो मैंने कहा ही है याद करने को। मान लेते हैं मैंने कहा है आपको 62 का स्क्वायर या 61 का स्क्वायर मान लेते हैं। अब मैं स्टैंडर्ड क्या लूं बताओ, what should be my standard? 50 sir. 50, very sir. good, 50 very good। तो 50 कैसे बनेगा, हाफ इंटू 100। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया मेरा, हाफ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, हाफ। तो 50 से अमीर है या गरीब है, कितना 11। तो 11 का बनेगा 121। अब अमीर आदमी और अमीर होता है, कितना बन जाएगा 72, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, हाफ से, तो बनेगा 36, और कैरी 1 तो है ही 36। यस सर। ये आंसर हो जाएगा। आ रही बात सबको समझ में। मान लेते हैं 54 होता, अमीर है 4 का स्क्वायर 16, तो 54 में अमीर आदमी 4, 58, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, हाफ से, तो कितना बनता 29। तो आंसर कैरी नहीं है, तो 29 16। तो ऐसे एक गरीब दो गरीब करके हम, एक अमीर दो अमीर करके 50 से 75 पहुंच जाएंगे, लेकिन गरीबी भी कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा आपको 47 का स्क्वायर, कितना गरीब है 3 का स्क्वायर बनेगा 9, तो 09 लिखेंगे। गरीब आदमी गरीब होता है, कितना बनेगा 44। आंसर लिखने से पहले हाफ से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 22, तो 2209। आ रही बात समझ में सभी को। यस सर। मान लेते हैं जो बच गया, पता है कौन सा बच गया, सिर्फ ये बच गया, 125 से 175, 225 से 275, ये बच गए। ये भी मैं करवाई देता हूं। मान लेते हैं 158 का स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बनाऊं मैं 150। 150 बनेगी 1.5 इंटू 100। ध्यान रखना जो मैंने बोली है वही स्टैंडर्ड लेनी है, या तो आप हाफ स्टैंडर्ड लोगे, या 1 या 1.5 या 2 या 2.5, यही स्टैंडर्ड ले सकते हो, और कोई स्टैंडर्ड नहीं लेना है। तो 1.5 स्टैंडर्ड ले लिया, तो 150 हो गया मेरा। अमीर है 8 का स्क्वायर 64, अमीर आदमी अमीर होता है तो 6। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.5 से। 1.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दिस वैल्यू प्लस इसका हाफ ऐड कर दूं, जो 15 से शॉर्टकट सिखाया था थोड़ी देर पहले। किसी नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, इंटू 1 प्लस हाफ, तो इंटू 1 तो यही रहेगा, हाफ इसका आधा हो जाएगा, और उसके बाद ऐड करना है 9, ये कितना बनेगा 14, 2 कितना बनेगा 249 64, ये आंसर है। ऐसे ही अगर ये 258 होता तो मुझे क्या करना पड़ता, स्टैंडर्ड 2.5 लेना पड़ता। यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मुझे 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और अगर मैं वो कर पाता तो मैं अपने सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाऊंगा। अब जो हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सारा नहीं करना है हमने को, ज्यादातर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो लास्ट 2 डिजिट की होती है। अब लास्ट 2 डिजिट में आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड क्या लेना है, उससे अमीर या उससे गरीब, बस उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ये कहा कि 8748 की पावर 2 है, मान लो मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो क्या मैं सारा मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, यानी मुझे चाहिए 48 का स्क्वायर। क्या मैं 48 का स्क्वायर करूंगा ना, स्टैंडर्ड क्या बनेगी मेरी 50, 50 से गरीब है 2,
2 का स्क्वायर 4, यानी इसका आंसर आएगा 4। यानी 8748 का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो जो भी आंसर आएगा आखिरी में 04 आएगा। मेरा इंटरेस्ट इसी में होता है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं ये सारा। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 789412889 होल का स्क्वायर, हमें लास्ट 2 चाहिए तो हम इसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास बचेगा 89 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड 100 है, गरीब है 11 का स्क्वायर 121। ये मेरा आंसर है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसलिए मैं सिखाना चाह रहा हूं ये सब कुछ, ठीक है। इस तरीके से हम सारे की सारी स्क्वायरिंग टेक्निक्स इजीली कर सकते हैं। बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? यस सर। ओके चलो, फिर मैं आपको एक ऋषिका कौन सा लास्ट पार्ट, ऋषिका मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला समझाना है आपको। ये वाला, अच्छा ये करना है। मान लो मैंने कहा कि हमें कोई नंबर चाहिए तो 789412889 का होल स्क्वायर चाहिए। होल स्क्वायर मतलब पूरा आंसर नहीं चाहिए, उसका लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो अगर मुझे किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट चाहिए होता है तो आई कैन इग्नोर ऑल दिस नंबर एंड आई कैन ओनली फाइंड आउट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 89 का स्क्वायर। अब इस पूरे नंबर को करने से अच्छा तो 89 ही कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूं 89 भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 89 का शॉर्टकट क्या था। 89 का शॉर्टकट ये था कि मेरे आंसर के 2 पार्ट होंगे, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट विल ऑलवेज हैव 2 डिजिट्स, ना तो ज्यादा डिजिट होंगे ना तो कम होंगे। अब हमारे को देखना है ये 100 स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 100, क्योंकि 100 के आसपास है। 100 से अमीर है गरीब है, गरीब है, तो हमें स्क्वायर किसका करना है, गरीब का। तो 100 का 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। आगे में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आंसर आ गया 21। क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आता ही है, चिंता ना करो, अभी मैं करवाऊंगा, आता ही ऐसा ही है। बट उसके अंदर ये थोड़ा पावर ज्यादा बड़ी होती है, बट करना स्क्वायर पड़ता है हमें। सबसे पहले स्क्वायर जरूरी होता है, हमें उसको पावर 4 इंटू समथिंग बनाना पड़ता है। तो 4 बनाने के लिए स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ता है। तो स्क्वायर का स्क्वायर करने में ये सब कुछ काम में आ जाएगा जो आज तुमने पढ़ा है, पूरा का पूरा डिट्टो का डिट्टो काम आएगा, ठीक है। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सब लोग अपने मन में 3 डिजिट का नंबर सोच लो, और जो भी सोचा है उसको 7 इंटू 11 इंटू 13 बताओ, और मुझे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो। मैं पहले तो बताऊंगा ये आपने क्या सोचा है, फिर मैं देखूंगा कि आपने जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। टेल मी, थिंक ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। 100 मत सोचना, थोड़ा ढंग का सोच लेना, थोड़ा मुश्किल तो सोच ही लेना। जो भी सोचोगे उसको 3 डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 से, फिर 13 से। सर आप वो 3 डिजिट बताओगे? हाँ मैं आपको बता दूंगा आपने क्या सोचा है। सर ये भी बताया था आपने। हाँ बस ठीक है, फिर ये सब गलत गलत आंसर दे रहे हैं कुछ भी। प्रयाग 290 to 11 गलत है। हाँ तुमने ऋषिका सोच तो लिया, मुझे आंसर बताओ, मैं ये बताऊंगा तुमने क्या सोचा है। हाँ खुशी ने 133 सोचा था। तो 941। नहीं वो तो तुमने सोचा है ना, तुम मुझे आंसर बताओ, मैं बताऊंगा तुमने सोचा क्या है। प्रयाग ने आंसर लिख दिया सीधा, आपने 321 सोचा था, उत्कर्ष ने 788 सोचा था। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? चलो कोई नहीं, मल्टीप्लाई करो पहले फिर देखते हैं। पीयूष ने 374 सोचा है, बिल्कुल ठीक है। सुमन ने 854 सोचा है, यस। अंशेष बिल्कुल सही, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज 7, 11, 13 आर प्राइम नंबर्स एंड दैट टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। यस गरिमा ने 121 सोचा है। तो 731157। 73115 ना, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। सर हम जो भी सोच ले आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। हाँ क्यों बता सकता हूँ, ये बताओ। सर आई थिंक लास्ट में पैटर्न सेम आएगा इनका। यस रिपीटिशन हो रही है, क्यों हो रही है वो समझाता हूँ। पहली बात तो ये, मान लो आपने 123 सोचा है, कितने लोगों ने पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 11 से, फिर 13 से?
अगर ये ऑर्डर फॉलो किया तो गलत किया, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ शॉर्टकट सिखाया था। मान लो 123 है, इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 11 की ट्रिक मुझे पता है, तो मैं छोटी वैल्यू पे ट्रिक क्यों लगाऊं, बड़ी वैल्यू पे लगाऊंगा। इसको पहले कर लेता हूँ। 7 इंटू ये बनेगा 91, 91 इंटू 11। इसकी भी ट्रिक मुझे पता है, दोनों के बीच में गैप बनाना है। 1 9 + 1 10 बनेगा, 0 कैरी 1 9 + 1 10 बनेगा, ये आ जाएगा। दिस इंटू 123, इसको भी क्यों करूं, इसको भी शॉर्टकट ट्रिक बताई थी अपने को, 1000 + 1 बनेगा। अब देखो ये क्यों हो रहा है, जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार 0 लगेगा, प्लस जब 123 करोगे तो ऑब्वियसली वो 3 0 के नीचे ही आएगा। तो जब ये 0 0 0 123 तो यही बनेगा, और ये भी 123 बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, नंबर रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं आपसे पूछूं 123 123 123, मान लो मैंने 300 डिजिट्स लिखे हैं। कितने डिजिट हैं? 300 डिजिट। और मैंने कहा इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 77, तो आंसर आएगा हाँ या ना। अब इसका कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली आपको पता है कि दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13। हर 6 नंबर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 123 इंटू 1001 1001, विच मीन 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 77 से तो डिवाइड होगा ही होगा। चिंता ना करो, मैंने शायद ज्यादा जोड़ दिया, ज्यादा बोल दिया, बट ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका यूटिलिटी क्या है। This number is certainly divisible by 77. This number is divisible by 11. It is divisible by 7. It is divisible by 13. It is divisible by 77. It is divisible by 143. It is divisible by 91. सारे possible combination से multiply होगा, and it is also divisible by 1001. करेंगे हम इसको divisibility rule में, but here I am just trying to say pattern वो important है। हमने कुछ कुछ चीजें ही पढ़ी हैं, कुछ छोड़ दी हैं, क्यों? क्योंकि वो जो हमारे एग्जाम से रिलेवेंट है, हम उन चीजों पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें। That is the whole point. ठीक है, टू दैट एक्सटेंट यस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को अप्रोच करने वाले हैं। बताइए, समझ में आई आज की क्लास अभी तक? Got it, sir. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स, एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ठीक है, then I will wrap this class here. I would want you to, take certain numbers, try to do multiplications, 2 by 2 multiplications in one line, 3 by 3 multiplications in one line. Try to memorize squares till 25, and then try to solve take any random value and try to figure out the squares of those values using this logic. And then, any questions? Sorry? Can you send any questions? आपके पास एक किताब मिली होगी आपको, वो स्पीड एनहांसमेंट की, there's a book on speed enhancement. You will have questions there. जो आपको मटेरियल मिला है ना, उसके अंदर एक सेट है, उसमें एक बुक है स्पीड एनहांसमेंट की, you can practice from there. Okay sir. ठीक है, तो what I was saying, हाँ, squares याद करना है, and try to practice like trying to solve in one line, trying to do some things in mentally where you have to multiply 5, 15, 25, वहां पे हम शॉर्टकट यूज करें, जहां पे 10 से बड़ा 10 से कम, 100 से बड़ा 100 से कम, 1000 से बड़ा 1000 से कम, उस टाइप की वैल्यूज को हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। सो ऑल दिस विल एड अप टू अवर basic preparation, and these things are certainly going to help us when we study our second book, and we will have number systems there. वहां पर भी ये सब कुछ में वापस काम में आना है। तो कैलकुलेशन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे नंबर्स के चैप्टर के अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वैदिक मैथ्स अपने आप में तो बहुत ही वास्ट है, 2 साल में हम भी पूरा नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू इम्प्रूव अवर एफिशिएंसी, दैट्स ऑल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही मेथड फॉलो करना है, यू कैन फॉलो योर ओन मेथड इफ यू थिंक दैट इज फास्टर with more accuracy, आप उसको follow कीजिए। The point is we need to try to devise certain ways and means to improve and speed up our solving process. सर ये PDF ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ये PDF डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके सर, ठीक है, चलो थैंक यू सर। ठीक है, then that should be all from my side. Thank you very much and have a very nice evening. Thank you guys. Bye sir. Bye, take care.